محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صدقہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا، آدھا بھی مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ متحدہ اضلاع میں شاندار پیمانے پر MLC کے کویتا کی سالگرہ تقریب کا انعقاد۔ مختلف مقامات پر کیک کٹ کرتے ہوئے BRS قائدین نے فلاحی خدمات دی انجام۔ RRR فلم میں ناٹو ناٹو نغمے کو آسکر ایوارڈ۔ اسمبلی اسپیکر پوچورام سنگھ ریڈی و ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کیا خوشی کا اظہار۔ CM KCR گورنمنٹ کی جانب سے جاری فلاحی و ترقیاتی اسکیمات سے متاثر ہو کر BJP و کانگریس پارٹی سے وابستہ قائدین نے حیدرآباد میں موجود ضلعی TR صدر آرمور MLA جیون ریڈی کے ہاتھوں BRS پارٹی میں کی شمولیت اختیار۔ MLC کے کویتا کی سالگرہ کے موقع پر ضلعی TR صدر آرمور MLA جیون ریڈی نے کی ملاقات و جنم دن کی دی مبارکباد۔ خواتین کو حفاظتی ڈھال کے طور پر استعمال ہونے کا خانہ پور میں واقع ورلڈ خود مختار تنظیم دفتر میں عالمی یوم خواتین تقریب سے DLSA سیکریٹری و سول جج پدماوتی کا خطاب۔ پروجوانی کے تحت حاصل کردہ درخواستوں کو فی الفور حل کرنے کے لیے کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے ذمہ دار عہدیداران کو دی ہدایت۔ سالانہ تنخواہ کے تحت آرمور ACP دفتر کا کمشنر آف پولیس کیا ناگراجو نے تنخواہ عمل میں لاتے ہوئے ریکارڈ کا لیا جائزہ۔ اندلوئی میں پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں تیز رفتار سے آنے والی کار و کنٹینر کا تصادم، 4 افراد برسر موقع ہلاک، متوفی افراد میں 2 بھائی شامل۔ ماہ رمضان المبارک میں تمام تر تیاریوں کو یقینی بنایا جائے اور قلعہ روڈ و بودھن روڈ پر بڑے گاڑیوں کی روک تھام کرتے ہوئے پولیس بندوبست و ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مجلس قائدین کی CP کیا ناگراجو سے ملاقات و نمائندگی۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل جانب۔ ماہ رمضان المبارک میں تمام تر تیاریوں کو یقینی بنایا جائے اور قلعہ روڈ و بودھن روڈ پر بڑے گاڑیوں کی روک تھام کرتے ہوئے پولیس بندوبست و ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مجلس قائدین کی CP کیا ناگراجو سے ملاقات و نمائندگی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد کا ایک وفد نے ڈپٹی میئر ادریس خان و صدر ضلع مجلس امور شکیل احمد فاضل کی قیادت میں کمشنر آف پولیس مسٹر کیا ناگراجو سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت حوالے کی، جس میں ماہ رمضان میں کی جانے والی تیاریوں پر زور دینے کے لیے نمائندگی پیش کی گئی۔ اس موقع پر شکیل احمد فاضل ضلع صدر نے کہا کہ اس ملاقات کا مقصد 23 مارچ سے رمضان کی آمد ہے، جس میں ہم نے کمشنر آف پولیس سے اس ماہ میں
ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने वो बोधन रोड व किला रोड पर बड़े गाड़ियों की रोकथाम करते हुए बाईपास से गुजारने के लिए कहा गया और मसाजिद, नेहरू पार्क, अहमदी मार्केट, किला रोड पर पुलिस बंदोबस्त व डिवाइडर्स लगाने के लिए नुमाइंदगी के अलावा छोटे ताजिन को सहूलत फराहम करने की नुमाइंदगी की गई, जिस पर CP ने मजलिसी कायदीन को तयक़ुन दिया कि वो तमाम महकमे जात के साथ माह रमज़ान की तैयारी के लिए एक इजलास मुनक़िद करेंगे और तमाम तैयारियों को बेहतर बनाने की बात की। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर, इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स एजाज हुसैन, शेख सलीम, अफसर बेग, सरफराज मोहम्मद खान, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद रफ़ी के अलावा टाउन मोतमिद व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, अजीज राही, शेख खलील व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज तमामी कॉर्पोरेटर्स, डिप्टी मेयर और टाउन बॉडी के ज़िम्मेदार लोग CP साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये है कि आने वाले रमज़ान महीने की तैयारियों के सिलसिले में हम CP साहब से नुमाइंदगी किए। तो CP साहब आज शाम में या कल एक मीटिंग टाउन प्लानिंग, म्यूनसिपल और ट्रैफिक और लॉ एंड आर्डर तमाम को लेकर एक मीटिंग का तयक़ुन दिया। इंशाअल्लाह कल तमाम ही मसाइल पर बात होगी, खुसूसन जो हेवी ट्रक्स वगैरह जो शहर बीचों बीच शहर से जाते हैं उसके ताल्लुक़ से तमाम ही अमूर पर बातचीत होगी। इंशाअल्लाह कल एक मीटिंग रखी गई है, उसमें हम तफसीलात इंशाअल्लाह बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि पुलिस वाले और आने वाले रमज़ान में सही तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट। डिवीज़न नंबर 59 गोल्डन जुबली हाई स्कूल में आंखों की रोशनी कैंप का इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरफराज मोहम्मद खान के हाथों इफ्तिताह, अवाम से इस्तिफादा हासिल करने की अपील। आज शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 59 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज मोहम्मद खान के हाथों गोल्डन जुबली स्कूल में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम की सहूलत के लिए मुफ्त में आंखों की बीमारी व मुफ्त चेकअप कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जहाँ पर मुफ्त चेकअप के साथ साथ आंखों के ऐनक के अलावा अद्वियात फराहम किए जाएंगे, जिससे अवाम इस्तिफादा हासिल करने की इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरफराज खान ने अवाम से अपील की और कहा कि यहाँ माहिरीन डॉक्टर्स मुसलसल 18 दिन तक आपकी खिदमत के लिए रहेंगे। किसी भी किस्म की तकलीफ होने पर इनसे रब्त पैदा करें, इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा कैंप ऑफिसर डॉक्टर तहमीना, ANM RP, एप्थोलॉजिस्ट मोहम्मद अजहर, मोहम्मद इरफान अहमद, म्यूनसिपल ऑफिसर शेख मुनव्वर पाशा, फैयाज साहब, सीनियर सिटीजन शेख फरीद व दीगर मौजूद थे। आज निज़ामाबाद में डिवीज़न नंबर 59 में गोल्डन जुबली स्कूल में हुकूमत की जानिब से आँखों का मुफ्त टेस्ट का अमल में लाया गया है। निज़ामाबाद डिवीज़न नंबर 59 के अवाम से गुजारिश है कि इस स्कीम से इस्तिफादा हासिल करें और फ्री टेस्ट और चश्मा भी दिया जा रहा है, और इसमें कोई दुश्वारी पेश आ रही तो हमारे से रब्ता करें, हम डॉक्टर से बात करेंगे। और मैं ये स्कीम के ज़रिए हुकूमत तेलंगाना को शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये स्कीम गरीब आवाम के लिए और बुज़ुर्ग लोगों के लिए ये स्कीम अच्छी है और इससे इस्तिफादा हासिल करें। ज़ईफ़ लोग हैं, ये कैंप यहाँ पर 18 दिन का कैंप है। गोल्डन जुबली स्कूल बामुकाम डिवीज़न नंबर 59 रूबरू किला रोड पर यहाँ पर कैंप रखा गया है। रुकन कौंसिल के कविता की बेगुनाही मुखालिफिन के मुंह पर तमाचा होगा। कॉर्पोरेटर में खुदूस ने मिसेस कविता की मनाई शानदार सालगिरह। निज़ामाबाद MLC व भारत जागृति समिति सरबराह के कविता की यौम पैदाइश के मौके पर आज सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 58 धारू गली निज़ामाबाद M खुदूस की जानिब से के कविता की सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर वाटर टैंक अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम बड़ा बाजार निज़ामाबाद में तलबा के साथ मनाई गई। इस मौके पर कॉर्पोरेटर M खुदूस ने केक काट कर सालगिरह मनाई और स्कूली तलबा में केक व चॉकलेट और टॉफियाँ भी तकसीम की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर M खुदूस ने MLC के कविता को सालगिरह की मुबारकबाद दी और दराजी उम्र व सेहत की बरकरारी के लिए दुआ करते हुए कहा कि कविता की अवामी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। वो एक बेबाक क़ियादत की हामिल खातून है जिससे मुल्क व कौम को फ़ख्र है। इन्होंने कहा कि बाद ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार जमातें व कायदीन के कविता की अवामी मकबूल शख्सियत की साख को मुतासर करने की मज़मूम कोशिश कर रही हैं और इनकी बेदाग अवामी खिदमत पर कीचड़ उछालने की शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, जिससे इनकी शख्सियत पर कोई असर होने वाला नहीं है और हर एक झूठे इल्ज़ाम, क्लीन चिट व बेगुनाह
رہنمائی حاصل کرے گی جو ان کے مخالفین کے منہ پر تماچا ہوگا۔ اس پروگرام میں BRS قائدین اختر احمد خان، رفیق قریشی، مرزا یونس بیگ، ایم اے معبود تنویر، ایم اے مجاہد، محمد پرویز اور کثیر تعداد میں اسکولی طلباء و طالبات موجود تھے۔ آج کویتا میڈم کا برتھ ڈے ہے۔ میری طرف سے PRS پارٹی کی طرف سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج ان کی خوشی میں، ان کے برتھ ڈے کے خوشی میں آج گرلس پانی کی ٹاکی اسکول میں ہم لوگ جو ہے سو کیک کاٹے ہیں اور بچوں میں چاکلیٹ تقسیم کیے ہیں، اور یہ بچے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کویتا میڈم کی صحت اچھی رکھے اور ان کی عمر دراز کرے، اور جو ہے سو انہوں تلنگانہ کے سارے عوام کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں، اور جو لوگ دشمنی کر کے ان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں صرف اور صرف BRS پارٹی ہی جیتیں گی انشاءاللہ۔ ہم سب BRS پارٹی کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں پھر ایک بار کویتا میڈم کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساری عوام کی طرف سے ان کو برتھ ڈے کی مبارکباد دیتے ہوئے صدر ضلع اقلیتی نظام آباد نوید اقبال کی قیادت میں MLC کے کویتا کی سالگرہ تقریب کا انعقاد۔ بھارت جاگرتی سمیتی سربراہ و نظام آباد MLC مسز کے کویتا کی سالگرہ کے موقع پر صدر ضلع اقلیتی سیل BRS پارٹی نظام آباد و رکن ریاستی حج کمیٹی مسٹر نوید اقبال کی جانب سے گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول اردو و انگلش میڈیم پھولاگ نظام آباد میں سالگرہ تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بحیثیت مہمانان خصوصی سینئر جرنلسٹ احمد علی خان، صدر ضلع MRPF خواجہ معین الدین، کارپوریٹر اکبر حسین، اسکول ہیڈ ماسٹر ناگراجو اور خواجہ شیخ علی صابری کے علاوہ BRS قائدین امجد خان، رشید خان، جاوید، فضل خان، امیر الدین، چاند قریشی، سید محمود، محمد اقبال، صدر عوام ویلفیئر سوسائٹی نواب بن علی و دیگر قائدین اور کثیر تعداد میں اساتذہ و اسکولی طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر ضلع اقلیتی نوید اقبال نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ MLC کے کویتا کو سالگرہ کی پرخلوص مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مسز کویتا نے عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، ہر ایک ضرورت مند کی مدد اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویتا ہمارے شخصیت کی حامل باوقار بلند حوصلے والی خاتون نے اپنی سیاسی بصیرت و دور اندیشی کے ذریعے کیے گئے عملی اقدامات و فیصلوں سے مخالفین بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کی نیک نامی کو متاثر کرنے کی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ نوید اقبال نے کہا کہ MLC کویتا نے سرکاری دواخانوں میں زیر علاج مریضوں، ان کی تیمارداری کرنے والوں، نظام آباد بودھن آرمور کے علاوہ سینٹرل لائبریری و نظام آباد پریس کلب میں کئی برسوں سے دوپہر کے تام کا نظم رکھا ہے۔ کورونا وبا و لاک ڈاؤن میں پریشان حال لوگوں کی مدد، بیرونی ممالک سے وطن واپس ہونے والے افراد اور متوفیوں کی میتوں کو لانے میں اپنے اثر و سوق کا استعمال کیا، عورت و خواتین کے حقوق کے لیے تحفظات فراہم کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ جمعیت علماء ضلع نظام آباد کی جانب سے نو منتخبہ ریاستی اقلیتی کمیشن چیئرمین طارق انصاری کی تہنیت و شال پوشی۔ جہد مسلسل عمل پہم انسان کو ہر گھٹن راستے سے نکال کر کامیابیوں کے عروج کو پہنچا دیتے ہیں، جس کی جیتی جاگتی مثال شہر نظام آباد کے ہر دل عزیز تحریک تلنگانہ کے بیلوس مجاہد جناب طارق انصاری ہے، جنہوں نے گزشتہ 18 سال سے BRS پارٹی کے پرچم تلے بلا لحاظ مذہب و ملت سب کے لیے یکساں کام کیا۔ ہر مشکل مرحلے میں شہریان نظام آباد کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، جن کو آج تلنگانہ مائنارٹی کمیشن چیئرمین منتخب کیا گیا، جو صرف اور صرف عوامی خدمات کا نتیجہ اور صلہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار شہر کے معززین و دانشوران نے جمعیت علماء کے زیر اہتمام منعقدہ تہنیتی تقریب سے کیا۔ اس موقع پر ضلعی صدر مولانا سید سمیع اللہ نے مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ محمد نصیر الدین معزز لیکچرر نے اقلیتوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے امید ظاہر کی کہ طارق انصاری جو اپنے کہلاتے ہیں اور یقیناً جن کو سب اپنا مانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، ان سے اس حوالے سے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ نیز مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ کامیابی تو کام سے ملتی ہے، انت تک کوششوں اور خدمت خلق کے جذبات رکھنے کا ثمرہ آج طارق انصاری کو ملا۔ جناب طارق انصاری ایک مہذب نوجوان، تعلیم یافتہ فرد اور سیاسی نشیب و فراز سے واقف شخص ہے۔ نیز اس باوقار عہدے کے لیے جناب KCR صاحب کا حسن
इंतखाब भी बहुत खूब है, जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि हमेशा की तरह अब भी वो बिला लिहाज मज़हब व मिलत कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। वाज़ेह है कि तारिक अंसारी का चेहरा जमात उलमा के लिए कोई नया नहीं, बल्कि वो एक ज़माने दराज जमीयत से वाबस्ता है। मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह ने कहा कि तारिक अंसारी अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलते हुए नेक नामी हासिल करेंगे और हर आम व खास की जबान पर आपका नाम होगा। जफर यही सदर बैतुल माल ने भी अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब्दुल खुद्दूस सीनियर कॉर्पोरेटर ने भी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। मोहम्मद अफजल तेजान, मुफ्ती रफीक अब्दुल वाजिद, यासीन अली, समी अमान, डॉक्टर इलियास, मौलाना इस्माइल आरिफी, कॉप्शन मेंबर मोहम्मद मोइजुद्दीन, मौलाना अरशद अली, मौलाना इमरान अजीज, हाफिज अब्दुल वली, मौलवी अब्दुल्ला वसीम, अहमद खान, इनायत अली अफरोज, हाफिज जुनैद, हाफिज आमिर, हाफिज मुजीब, मोहम्मद हुसैन व दीगर ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। नेज़ सीएम जनाब केसीआर साहब की अखिलत दोस्ती का हवाला देते हुए मुख्तलिफ स्कीमात का जिक्र किया और शुक्रिया अदा किया। नेज़ कहा कि इंशाअल्लाह इस मनसब का सही इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। नेज़ मौलाना सैयद वलीउल्लाह खासमी और अपने वालिद बुजुर्गों की मोहब्बतों को याद करते हुए आप दीदा हुए और कहा कि इस मनसब का मिलने पर जो इज्जत अफजाइयाँ और हौसला मंदी जमात उलमा की जानिब से की गई है, इसका ममनून व मज़कूर रहूंगा। सदर जमात उलमा सैयद समीउल्लाह की दुआ पर इस नशिस्त का इख्तिताम अमल में आया। कमीशन का चैनल बनाया गया, इसमें काबिल जिक्र जो है क्रिश्चियन भाई आते हैं, मुस्लिम भाई, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख ब्रादरी के लोग आते हैं। काफ़ी चीज़ें जो है सुना भी हूँ और नसीर साहब से भी फोन में भी गुफ्तगू हुई थी। अभी भी जो है आपने कई ऐसे दरकार कर रहे हैं, यकीनन वो बिल्कुल सही बात है कि जो है इस इदारे को ऐसे इख्तियार है किसी के साथ जो है कोई भी चीज़ बनवा सकती है। दरअसल दुनिया एतबार से बात बताना, दुनिया एतबार से तमाम दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो ये दरवाज़ा खुल जाता है। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से तकरीब बउनवान जमात इस्लामी हिंद की 75 साला खिदमात का इनेकाद, कसीर तादाद में ज़िम्मेदारान व सहाफ़ियों की शिरकत। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से 75 साला सरगर्मियों को वाकिफ करवाने के लिए बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब इंटीग्रेटेड फाउंडेशन स्कूल बोधन रोड पर मौज़िज़ान शहर वकला डॉक्टर ताजिर सहाफ़ी उलमा पर मुश्तमिल अफराद मौज़िज़ीन का इजलास अमल में लाया गया। जनाब हामिद मोहम्मद खान अमीर हल्क़े जमात इस्लामी तेलंगाना ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी 75 साल में जो कारकर्दगी की वो अल्लाह का फजल और आपके ताउन से अंजाम पाए। जमात इस्लामी दावत इस्लाम मुआशरा खिदमत खल्क़ तरबियत व तंजीम मुल्की मसाइल पर काम करेंगे। जमात इस्लामी तालीमी व तिब्बी बिला सूदी इदारे क़ायम के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में मसाइल बेशुमार है। मुल्क व मिलत की खिदमत के लिए जमात इस्लामी को अफरादी वसाइल की ज़रूरत है। जमात इस्लामी इन तमाम कामों से अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने चाहती है। प्रोग्राम को माहिरीन तालीम अब्दुल रशीद, अब्दुल बसीर, मोहम्मद कासिम, एडवोकेट यही जफर, ख्वाजा नसीरुद्दीन, मुफ्ती शमीम, जहीरुद्दीन दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में गैर मुस्लिमों के दरमियान इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ फैली हुई है, इनके इजारे की कोशिश कर रही हैं। मुल्क व मिलत के अहम मसाइल पर वक्त आवाज़ उठाते हैं। उम्मत मुसलिमा में दिन का मुकम्मल शौर पैदा करते हुए मायूसी के अंदेशों से निकालना चाहती है। जनाब अब्दुल मलिक जाकिर की तिलावत कुरान से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। अहद अमीर ने कन्विंग के बाद प्रोग्राम के मेहमानों के लिए ताम का इंतज़ाम किया गया। फिर बिलासूदी सोसाइटियों का जाल बिछाया, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट को कायम किया, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन को कायम किया, सहूलत माइक्रो फाइनेंस को कायम किया, खिदमत बैंक्स को कायम किया, EDC को कायम किया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स को कायम किया, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कायम किया, यहाँ पर भी कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह अलखैर सोसाइटीज को कायम किया, SFB को कायम किया, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर को कायम किया, ICIF इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस को कायम किया, जिसने एक कारनामा अंजाम दिया। अगर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू होती तो यहाँ हर कमर्शियल बैंक के अंदर एक बिलासूदी विंडो कायम हो जाता। आर्मर मिले कैंप ऑफिस दफ्तर पर सीनियर कायद BRS उमर अहमद की निगरानी में मिलसी के कविता की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद।
आर्मूर MLA कैंप दफ्तर पर TRS एक्टिव लीडर सुमेर अहमद की निगरानी में MLC कविता मैडम दफ्तर KCR की यौम पैदाइश का जश्न मनाया गया। इस मौके पर TRS अखलाती कायदीन जिसमें सुमेर अहमद, म्यूनसिपल नायब चेयरमैन शेख मुन्नू, काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, अब्दुल रहमान, सैयद फयाज ने शिरकत करते हुए यौम पैदाइश का केक काटा गया और गुरबा के लिए खाने का नज़्म किया गया। इस मौके पर जिले BRS एक्टिव लीडर सुमेर अहमद ने मुखातिब करते हुए कहा कि रुकन असम्बली आर्मूर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के अहकामात पर कानून साज काउंसिल मेंबर कविता मैडम का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बताया कविता मैडम रियासत तेलंगाना की जद्दोजहद में अहम रोल अदा किया और कविता मैडम गरीबों की मसीहा है। कविता एक डायनामिक पर्सनालिटी का नाम है। इन्होंने तेलंगाना की तरक्की में अहम रोल अदा किया। इनकी नुमाइंदगी पर KCR, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और दीगर कई स्कीमात नाफिज की। ED की जानिब से इनकी पूछताछ को BJP का सियासी खेल करार दिया। इस मौके पर नायब चेयरमैन शेख मुन्नू ने कविता मैडम को मुबारकबाद देते हुए BJP लीडर बंडी संजय को आड़े हाथ लेते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, नुमाइंदे काउंसलर अब्दुल रहमान, सईद फयाज, तुराब अली, लतीफ, पूजा नरेंद्र व दीगर मौजूद थे। काउंसिल के मेंबर KCR साहब, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के दफ्तर आली जनाब इज्जत माप के कविता मैडम साहिबा की यूम सालगिरह आज MLA कैंप ऑफिस पर मनाते हुए बहुत ही बड़े पैमाने पे, उसके बाद यहाँ से फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी शिरकत करेंगे। दरअसल कविता मैडम एक ऐसी नारी है और ऐसी शख्सियत है जो तेलंगाना हासिल करने में जागृति के साथ फर्दर जेलों को जाते हुए, भूख हड़ताल करते हुए आज हमें तेलंगाना दिलवाए। बोले तो कविता मैडम साहिबा का एक अहम रोल है। आज कई लोग कई बोल रहे थे कविता मैडम के साथ, लेकिन कविता मैडम एक भरोसे का नाम है, एक उम्मीद का नाम है। कविता मैडम गरीबों की मसीहा का नाम है। कविता मैडम के ऊपर लाख तोहमतें आ जाए, मगर कविता मैडम जो आज से लगातार 5 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने दीजिए। मौज़े नीला में जश्न हज़रत सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह मनाया गया। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन काउंसिल के अरकान की शिरकत। हिंदुस्तान में कई औलियाए अज़ाम के आस्थानों से लोग रूहानी फैज़ हासिल कर रहे हैं और कई आस्थाने ऐसे भी हैं जहां रूहानी तौर पर कई जिस्मानी अमराज के अलावा जादू, टोना, शैतान व जिन्नात के शर से परेशान लोग भी फैज़ याब हो रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से इनका रूहानी इलाज भी होता है। रियासत महाराष्ट्र के ज़िले बुलढाना के मौज़े सैलानी में हज़रत हाजी अब्दुल रहमान क़िबला अल-मारूफ सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मौजूद है। कल इनका उर्स शरीफ था। बेशुमार लोग इस आस्थाने से रूहानी फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़िद हो रहे हैं। कल बरोज़ इतवार मौज़े नीला में बाद नमाज असर जनाब अब्दुल वहीद साहब क़ादरी अल चिश्ती सैलानी के मकान से जुलूस संदल निकाला गया। क़ब्ल अज़ मग़रिब संदल मारी की मरासिम अदा किए गए। बाद नमाज मग़रिब ताम का नज़्म रखा गया और रात 9:30 पर महफ़िल समा मुनक़िद था। इस जश्न हज़रत सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह में शिरकत करने वाले काबिल ज़िक्र हज़रात में हज़रत सूफ़ी यूनुस मिर्ज़ा क़ादरी अल चिश्ती बियाबानी जामे सलासिल क़िबला सज्जदा नशीन आस्थाना अलैया हज़रत सैयदना कमाल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर निज़ामाबाद, इंचार्ज ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन काउंसिल हज़रत सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह क़ादरी जामे सलासिल निज़ामाबाद, मोतमिद आस्थाना हज़रत ख्वाजा सैयद शम्सुद्दीन गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानाबाद व इंचार्ज ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन काउंसिल हज़रत मोहम्मद अब्दुल बारी क़ादरी साहब क़िबला जानशीन खानखा अकबर नगर बोधन जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब अली शाह क़ादरी क़िबला सज्जदा नशीन बोधन जनाब मोहम्मद अब्दुल हादी साहब क़ादरी बोधन जनाब सूफी मोहम्मद फारूक अली क़ादरी साहब, काउंसलर अहमदपुरा निज़ामाबाद जनाब सूफी मुश्ताक अली क़ादरी साहब निज़ामाबाद, जनाब मीर जुल्फ़िकार साहब साबिक़ मेयर हैदराबाद, इमाम मोहतरमा आकुला ललिता साहबा साबिक़ MLC निज़ामाबाद, जनाब रघुवेंद्र राव साहब सरपंच नीला के अलावा कई सियासी, समाजी, मजहबी हजरात के अलावा बेशुमार ज़ायरीन ने शिरकत की। जनाब मुजाहिद क़ादरी साहब और जनाब ज़हीर साहब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और जनाब मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब क़ादरी अल चिश्ती सैलानी साहब जानशीन खानखा सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। चियोता तंजीम की जानिब से मुसलसल 15 यौम से अपनी खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को पेश की गई तहनीत।
चियोता तंजीम के बानी डॉक्टर मधुशेखर ने 15 दिन कबल ही ऐलान किया था आलमी यौम ख़वातीन के मुनासिब से 12 मार्च को एक कैंप रखा जाएगा जिसमें ख़वातीन के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन मुफ्त अंजाम दिए जाएंगे और कैंसर के मुतालिक ख़वातीन में शौर बेदारी प्रोग्राम रखा गया। इसी तरह MJ हॉस्पिटल में डॉक्टर मधुशेखर की निगरानी में ख़वातीन डॉक्टर्स ने ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर मबनी 30 मुफ्त ऑपरेशन अंजाम दिए और कैंसर के मुतालिक शौर बेदार किया गया। इस मौके पर चियोता तंजीम की जानिब से ख़वातीन डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबों में अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ख़वातीन को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर चियोता तंजीम के बानी डॉक्टर मधुशेखर ने बताया कि हमारी कोशिश यही है कि गरीब ख़ानदान को इस कैंप से फ़ायदा हो। इसी तरह 150 अफराद के नाम का इंदराज हुआ था, लेकिन सहूलत के हिसाब से जुमला 30 मुफ्त ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम दिए गए और इन्होंने ख़वातीन डॉक्टर वसंता, सुरेशा, श्रीलता, नंदिनी, श्रवती, पद्मा की सताइश की जिन्होंने कामयाबी के साथ ऑपरेशन के फ़राइज़ अंजाम दिया और कैंसर के मुतालिक शौर बेदार किया। इस मौके पर डॉक्टर लिंगारेड्डी, डॉक्टर मधुशेखर, डॉक्टर नागराज और दीगर मौजूद थे। అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మరి ఆ వారంలో సండే అయితే వీలవుతుంది అందరు డాక్టర్లకు అనే ఉద్దేశంతో చేయుత స్వచ్ఛంద సంస్థలో గల 38 డాక్టర్ల నుంచి దాదాపు 26 మందిని ఈరోజు సర్జన్లు, గైనకాలజిస్టులు, అనస్థెటిస్టులు, ఫిజిషియన్లు, తర్వాత ఇతర స్పెషలిస్టుల సపోర్ట్లతో మరి పేద మహిళలకి ఉచిత కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ చేయాలని నిర్ణయించుకొని ఈరోజు దాదాపు 30 మందికి ఉచితంగా ఆపరేషన్లు, దానికి సంబంధించిన రక్త పరీక్షలు, తర్వాత దానికి సంబంధించిన మందులు కూడా 2 రోజుల వసతిని కూడా ఇక్కడిచ్చి 30 మందికి విజయవంతంగా ఆపరేషన్లు పూర్తి చేశాం. దాదాపు ప్రైవేట్లో చిన్న హాస్పిటల్లో కూడా దాదాపు 25,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఇది అట్లాంటి बालकुंडा मंडल में मिर्सी के कविता के जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़ियादत व बालकुंडा मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी के ज़रिए निगरानी पार्टी दफ्तर में तेलंगाना की आन बान शान हर दिल अजीज कायद MLC के कविता की सालगिरह तकरीब टीआरएस मंडल सदर MPP लावनी लिंगा गौड व मंडल से वाबस्ता कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर यौम पैदाइश तकरीब मनाते हुए केक काटा गया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, हल्के सामान्य कमेटी मेम्बरान T गंगाधर, मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, मौजे के सदर सागर यादव, नियावा नंदी सायना, A शरत, A श्रीनिवास, सोसाइटी चेयरमैन N सूरज रेड्डी, MPTC मेम्बरान K पोशेट्टी, नायब सरपंच C श्रीनिवास गौड, सोसाइटी डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद गौड, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर वेम्पली चिन्ना, बाल राजेश्वर, सैयद मजालुद्दीन, साबिक़ा MPP CH किशन, साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर MA शाहिद, वार्ड मेम्बरान G राजेश, सैयद मजालुद्दीन, बालकुंडा मंडल सोशल मीडिया कन्वीनर B किट्टू, मंडल के कायदीन T गंगाधर, G राजेश, शेख आरिफ, P दियाकर, सैयद इम्तियाज, M अशोक, सैयद रियाद व दीगर ने शिरकत की। प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। ज़िले निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 69 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि ज़िले के मुख्तलिफ मकामात से कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, इन्होंने कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DRDO चंदन, निज़ामाबाद RDO रवि को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करें और शिकायत कुनिंदगान को PR दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करने की ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। CM KCR की क़ियादत में जारी तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासर होकर आमिर शहर के BJP व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता मशहूर मारूफ कायदीन विजय अग्रवाल व श्रीनिवास गौड के अलावा नौजवानों ने जिले TRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाई जाने वाली मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर आज आनमू शहर की BJP कांग्रेस पार्टियों से वाबस्ता कायदीन शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर में मुनक़दा प्रोग्राम में ज़िले TRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी के हाथों PRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तक़बाल किया। बातज़ा इन्होंने क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात के ज़रिए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़ियाब किया जा रहा है और इसके अलावा मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए
फंड्स की फिल पर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे मुकामी अवाम टीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। इसी तरह से रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए आशा पेंशन स्कीम के तहत बेसहारा खवातीन, माजूर अफराद व ताड़ी सिंधु के अलावा मामरीन को हर माह पाबंदी के साथ वजीफा दे रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। और लड़कियों की मियादी तालीम के लिए अखलती अकामती स्कूल व हॉस्टल्स कायम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी के जरिए हामिला खवातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने के अलावा सरकारी दवाखाने में ज़चगी के मौके पर KCR किट के साथ लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़की की पैदाइश पर 12,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि नागानी सूरत हाल में खानगी दवाखानों से रुजू होने वाले अफराद रूबे सेहत होने के बाद इनके इलाज मुआलजे पर खर्च होने वाले अखराजात को CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए रकम इमदाद दी जा रही है। और सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए एक तोहफे से कम न होने का इजहार किया। MLC के कविता के सालगिरह के मौके पर शहर के शिवाजी चौरास्ते पर केक काटा गया। खाने की फराहमी पर मबनी प्रोग्राम का सिटी मेयर नीतू किरण ने किया इफ्तिताह। सदर तेलंगाना जागृति समिति व रुकन खानसाज कौंसिल के कविता के यौम पैदाइश के मौके पर कई फलाही खिदमात का इनेकाद अमल में लाने का मेयर नीतू किरण ने इजहार करते हुए बताया कि ओहदे पर फायज हो या ना हो, अवामी खिदमात में हमेशा पहल करते हुए शहर की सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों व इनके मददगारों को मुफ्त खाने का इंतजाम कर रहे हैं। और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन तमाम शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए हौसला अफजाई करते हुए तेलंगाना के सकाफती प्रोग्राम्स को मुल्की सतह पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सिटी सदर एस राजू, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिक़ मेयर आकुला सुजाता, कॉर्पोरेटर्स, नूडा डायरेक्टर व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद के इंदलवी मंडल चंद्रानपल्ली तांडे के पास पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद बरसरे मौके हलाक। तफसीलात कुछ इस तरह से। जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 नौजवान बरसरे मौके हलाक हुए। यह हादसा जिले के इंदलवी मंडल के चंद्रानपल्ली कौमी शाहरा पर इतवार की रात इस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से जाने वाली कार ने तवाज़ुन खो दिया और ये कार ठहरे हुए कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 नौजवान मौके पर ही हलाक हुए और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज रफ्तारी हादसे का सबब बताया जा रहा है। महलूकीन मोबाइल फ़ोन के साथ सामान का होलसेल बिजनेस करते थे। ये नौजवान हैदराबाद में सामान की खरीदारी करने के बाद वापस हो रहे थे कि ये हादसा पेश आया। मरने वालों की शनाख्त निजामाबाद शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी का गणेश, इसका भाई आदित्य का दोस्त प्रकाश की हैसियत से हुई, जबकि इनका आबाई वतन बिलोली महाराष्ट्र है। एक और नौजवान की शनाख्त नहीं हो सकी। प्रकाश की शादी 2 मई को मुकर्रर थी, जबकि गणेश की अहलिया 9 माह की हामिला है। MLC के कविता के यौम पैदाइश के मौके पर जिले टीआरएस सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की मुलाकात व जन्मदिन की दी मुबारकबाद। MLC के कविता से जिले टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश और कहा कि सालगिरह तकरीब मस्जिद मनाने की ख्वाहिश की और मुस्तकबिल में मस्जिद आला ओहदे हासिल करके ताहियात तक अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश की। सालाना तनख़ी के तहत आर्मूर ACP दफ्तर का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने अचानक तनख़ी अमल में लाई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ आर्मूर ACP दफ्तर का सालाना तनख़ी के तहत कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर आर्मूर ACP दफ्तर में पुलिस मुलाजमिन की जानिब से दी गई सलामी को कबूल किया। बातज़ा इन्होंने ACP दफ्तर के तमाम रिकॉर्ड का बारीक बीनी से मुआयना करते हुए इत्मीनान का इजहार किया और पुलिस मुलाजमिन की सेहत के ताल्लुक से जानकारी हासिल करने के अलावा ACP दफ्तर के रिकॉर्ड, स्पेशल ग्रेवेक्स, SC/ST मुकदमा व FSL रिकॉर्ड को रूबे अमल में लाने में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। RRR फिल्म में नाटू 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 नगमे को ऑस्कर अवार्ड। असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया खुशी का इजहार। तेलुगु फिल्म RRR के मशहूर गाना नाटू नाटू ने बेहतरीन ओरिजिनल गाने के ज़िम्मे में ऑस्कर अवार्ड हासिल करने पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खुशी का इजहार किया और कहा कि तेलुगु फिल्म बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी ताकत का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए ऑस्कर अवार्ड हासिल करने को काबिल खुशान करार दिया। ख़वातीन की हिफाजती ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का DLSA सेक्रेटरी व सिविल जज पद्मावती ने किया इजहार।
शहर के खानापुर में वाक़ वर्ल्ड खुद मुख्तार तंजीम दफ्तर में मुनाक़दा यौम ख़वातीन तक़रीब में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर DLSA सेक्रेटरी व सिविल जज पद्मावती ने शिरकत करते हुए घरेलू तशद्दुद व बचपन की शादियों के क़वानीन के ताल्लुक से तफ़सीलात बताते हुए कहा कि कानून को जाने बगैर कोई कानूनी हुकूक़ व फलाह व बहबूद की ख्वाहिश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों व लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वालों से हिफाजत के लिए जराइम का इर्तिकाब करने वालों को सजा दिलाने के लिए पॉस्को एक्ट को रूप अमल में लाने का इजहार किया। हुसैन सागर के किनारे रियासती हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से तामीर करने वाले दस्तूर के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 125 फीट मुजस्समे की तामीरी कामों का CM KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। दस्तूर के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मुजस्समे का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए CM KCR की जानिब से फैसला व इनकी हिदायत के मुताबिक पेशरफ कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लेते हुए तमाम तामीराती साइट्स का मुआयना करने के फौरी बाद वहां पर मौजूद ओहदेदारान वर्क एजेंसी के साथ इजलास मुनाक़िद करते हुए कहा कि CM KCR दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से खुसूसी मोहब्बत रखते हैं और इनकी जानिब से दस्तूर में तहरीर करदा आर्टिकल 3 के तहत रियासत तेलंगाना के तश्कील अमल में लाई गई हैं। इनके अज़ाइम व ख्यालात को मुस्तक़बिल में हमेशा याद रखने के लिए शहर हैदराबाद के हुसैन सागर के किनारे बावखार तरीके से 125 फीट मुजस्समे की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। AIMIM पार्टी के ज़ेर निगरानी में नवी पेट उर्दू स्कूल 10th क्लास के तलबा में मुफ्त मॉडल पेपर बुक्स की फराहमी अमल में लाई गई। नवी पेट मंडल के मकाम पर वाक़ गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में AIMIM पार्टी की ज़ेर निगरानी में MIM पार्टी ज़िले सदर शेख फाजिल ने 10th क्लास के तलबा में मुफ्त मॉडल पेपर बुक्स की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर ज़िले सदर ने खिताब करते हुए कहा कि MIM पार्टी के सरबराह असदुद्दीन अवैसी के अहकामात के मुताबिक उर्दू स्कूल में 10th क्लास के तलबा में मॉडल पेपर बुक्स की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MIM पार्टी मंडल सदर अब्दुल खदीर, सिटी सदर अरशद कुरैशी, रहीम, बाबा कुरैशी, MD गौस, MD शफी आमिर वो दीगर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद आने वाली नस्ल उसको फॉलो अप नहीं कर सकी, इसलिए आज हम हिंदुस्तान में सबसे पीछे हैं। वजह क्या है? हम लोग, हमारे बड़े जो हमारे से वो लोग पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी, लिहाजा आज हमें ज़रूरत है खुसूसन आने वाली नस्ल के लिए। MLC के कविता के जन्मदिन तकरीब को जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर व जिले ओलंपिक नायब सदर व ZPTC बाजरेड्डी जगन मोहन ने शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया। सदर तेलंगाना जागृति समिति व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के सालगिरह के मौके पर जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर व जिले ओलंपिक नायब सदर ZPTC बाजरेड्डी जगन मोहन डिचपली मंडल के मंदिर में सेहत व उम्र दराजी के ताल्लुक से खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने डिचपली मंडल के मुकाम पर वाक़ मानवा सदन में ज़ेर तालीम तलबा के हमरा के कविता के सालगिरह के मौके पर केक काटा वो बच्चों में मिठाई की तक़सीम अमल में लाई। ముఖ్యంగా మగవాళ్ళకి ఇంట్లో ఒక హక్కు ఉంటే చాలా చాలా పనులు ఈజీగా అయిపోతాయి. హక్కు ఉంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైనా కోపం ఉన్నా, తండ్రి మీద కోపం ఉన్నా, తల్లి మీద కోపం ఉన్న హక్కు ద్వారా మనం వ్యక్తపరిచే వెసులుబాటు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంట్లో అక్కలు లేకుండా మనకు ఒక అక్కలాగా కవితకు ఉంది. నాకు అక్కలేదు, కానీ అక్కలో మా అక్కలు చూసుకుంటున్నాను నేను ప్రతిసారి. शहर के R&B गेस्ट हाउस में गौड़ा संगम के ज़ेर निगरानी में के कविता की सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर मुनाक़िद की गई। शहर के R&B गेस्ट हाउस में गौड़ा संगम के ज़ेर निगरानी में MLC कविता के जन्मदिन तकरीब MLC विजय गौड़ की क़यादत में शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाए गए। इस मौके पर MLC विजय गौड़ ने खिताब करते हुए MLC कविता मुस्तक़बिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए ताहियात तक अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश की इस प्रोग्राम में BRS कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। భారత జాగృతి అధ్యక్షురాలు, అదేవిధంగా మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి జిల్లా నిజామాబాద్ జిల్లా శాసనమండలి సభ్యురాలు, మా అందరి ప్రియమైన నాయకురాలు, కవిత గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంలో
ఇప్పటికే ప్రొద్దున నుంచి 2-3 సమావేశాలు పాల్గొని మరి పుట్టినరోజు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని निजामाबाद मियां नीतू किरण ने एमएलसी के कविता की सालगिरह तकरीब बनाई। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने एमएलसी के कविता की सालगिरह के मौके पर कविता का दफ्तर में केक काटा वो जागृति खाद निराला सुधाकर की जानिब से तहरीर करदा गीत की सीडी रस्म इजराई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स नोडा डायरेक्टर कायदीन, महिला कमीशन मेंबर सुदम लक्ष्मी, कॉर्पोरेटर इन लता, साबिक कॉर्पोरेटर चांगू भाई, सिटी सदर इस राजू व दीगर ने शिरकत। तलबा को एग्जाम हॉल टिकट की जाय के लिए हरासा करने वाले स्कूल व कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का TNSF खादिन ने जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। आज तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से आज कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट के हाल टिकट जो रोक रहे आज फीस ड्यू रहने की वजह से आप लोगों के पास सर्टिफिकेट रहते आप स्टूडेंट की फ्यूचर्स उनका लैप्स हो जाता उनका आप हाल टिकट नहीं रोकना और हाल टिकट इश्यू करना। बाद में एग्ज़ाम होने के बाद भी आप अपनी फ़ीस ले सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट रहते हैं उनकी ज़िंदगी के साथ वक्त लो स्टूडेंट की। कलेक्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि DIO साहब को बोल के इंस्पेक्शन करा के उनके जिसके स्टूडेंट के हाल टिकट उनको दिया जाए। हमारे TNSF की जानिब से हमारी ये डिमांड है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मुत्तहदा अज़ला में शानदार पैमाने पर MLC के कविता की सालगिरह तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ मुकामात पर केक कट करते हुए बियारत कायदीन ने फलाही खिदमात दी अंजाम। RRR फिल्म में नाटू नाटू नगमे को ऑस्कर अवार्ड। असम्बली स्पीकर पोचुराम निवास रेड्डी व रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया खुशी का इजहार। CM KCR गवर्नमेंट की जानिब से जारी फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर BJP व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने हैदराबाद में मौजूद जिले टीआर सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। MLC के कविता की सालगिरह के मौके पर जिले टीआर सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने की मुलाकात व जन्मदिन की दी मुबारकबाद। खवातीन को हिफाजती ढाल के तौर पर इस्तेमाल होने का खानापुर में वाक़ वर्ल्ड खुदमुख्तार तंजीम दफ्तर में आलमी यौम खवातीन तकरीब से DLSA सेक्रेटरी व सिविल जज पद्मावती का खिताब। प्रोजमानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलपुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। सालाना तनख्वाह के तहत आर्मूर ACP दफ्तर का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने तनख्वाह अमल में लाते हुए रिकॉर्ड का लिया जायजा। इंदरवई में पेश आए भयानक सड़क हादसे में तेज रफ्तार से आने वाली कार व कंटेनर का तसादुम, 4 अफराद बरसरे मौके हलाक। मुतवफ़ी अफराद में 2 भाई शामिल। माह रमजान मुबारक में तमाम तर तैयारियों को यकीनी बनाया जाए और किला रोड व बोधन रोड पर बड़े गाड़ियों की रोकथाम करते हुए पुलिस बंदोबस्त व ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मजलिस कायदीन की CP कियाना गराजू से मुलाकात व नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।